So here today in this video we are discussing about the circulatory system of cockroach. So circulatory system of cockroach में few things that we know, we will have to connect those things with the actual body physiology, or you can say the actual body mechanism of this particular animal. Okay, so we know that the circulatory system is open type. Okay, and another thing I would like to add over here, this is not relevant with the circular system, but it has a very important significance in explaining as well as in understanding the circulatory system. And what is that? Their body cavity. We know their body cavity is caesocoelom, and caesocoelom is something which is made up of what? Caesocoelom is something which is made up of mesoderm. It is lined by mesoderm, but the coelom is not a compound. The coeloms are found in the form of pouches. That means there can be like some pouches which will create some body space inside the body of the animal. So from that thing you will have to know that because arthropods, they have a caesocoelom kind of body cavity, hence their body cavity is divided into three chambers. Three chambers is what their body cavity is divided into. This is head, this is thorax, this is abdomen. मैं बीच का जो पार्टीशन है उसको मैंने रब कर दिया, and as a whole we are seeing. So this part will be one body cavity which is present dorsally, ventrally, and one will be present in the middle. Each of those body cavity has got a individual name. The one which is present on the dorsal side, that is pericardial sinus. ठीक है, you can consider caesocoelom इस एनिमल का है, और इस एनिमल का caesocoelom में there are three pouches. So पहला जो पाउच है वो डोर्सल सेटल हो गया, वो पाउच को हम लोग क्या बुला रहे हैं? पेरिकार्डियल साइनस. ओके, बीच वाला को क्या बुला रहे हैं? पेरीविसरल साइनस. एंड लास्ट वाले को क्या बुला रहे हैं? द लास्ट वन इज कॉल्ड एज पेरीन्यूरल साइनस. These are the three sinus which are demarcated from one another, separated from one another by this line. What is this line called? It is called dorsal diaphragm. And what is this line called? It is called ventral diaphragm. So dorsal diaphragm is separating the pericardial sinus with perivisceral. This is pericardial and this one is perivisceral. So pericardial perivisceral को separate कौन कर रहा है? Dorsal diaphragm. Perivisceral and perineural को separate कौन कर रहा है? Ventral diaphragm. Okay. Here एक informational point दिया है. Pores present in the diaphragm called fenestra. So it has been said that there are some pores present in this diaphragm जिनके through movement of blood होता है. Okay, so these pores which are present in this diaphragm are called as fenestra. इन pores का क्या function है that you will know gradually. Okay, अच्छा. Body cavity as a whole is called as hemocoel. Individually they have got their names, but all these three, pericardial plus perivisceral plus perineural, will be called as what? It will be called as hemocoel. So hemocoel is the overall body cavity, okay, which is divided into three parts: dorsally, pericardial, बीच वाला perivisceral, तीसरा perineural. And if you ask me, sir, हम लोगों ने ऐसा नाम क्यों दिया? pericardial, perivisceral, perineural, ये नाम हम लोगों ने क्यों दिया? हम लोग तो कुछ और नाम भी दे सकते थे. These names were given indicating the type of organ or organ systems which are present in these sinuses. ठीक है, जैसे कि जो पेरिकार्डियल साइनस है, ठीक है, उस पेरिकार्डियल साइनस में हम लोग को क्या प्रेजेंट मिलेगा? पेरिकार्डियल साइनस विल बियर व्हाट? हार्ट. पेरीविसरल साइनस विल बियर व्हाट? एलिमेंट्री कैनल. पेरीन्यूरल विल बियर व्हाट? नर्वस सिस्टम. सो इन सब बॉडी कैविटी में, ये जो एक बॉडी कैविटी है, ये एक है, ये एक है, इन सब बॉडी कैविटी में एक इंडिविजुअल ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का प्रेजेंस के वजह से हम लोगों ने इस तरीके का साइनसेस का नाम दिया है. ठीक है, एंड कनेक्ट करो, तुम लोगों ने कॉर्डाटा एंड नॉन कॉर्डाटा का डिफरेंस में पढ़ा था. नर्वस सिस्टम, नर्व कॉर्ड, इन केस ऑफ whom? In case of non-chordates are present on which position? Ventral. जबकि हमारा कहाँ है? Dorsal. Whereas the heart is present where? In them the heart is present dorsally. In us the heart is present ventrally. So these are simple differences. So ये सब छोटा छोटा चीज जो जिसको याद रखना है, क्योंकि मैकेनिज्म समझने में these small detailings are going to help us a lot. Okay, so I hope this portion is clear. Okay. ब्लड विच विल सर्कुलेट इन इट्स बॉडी. ठीक है, ओपन टाइप का डेफिनेशन बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है. तो ब्लड जो इसके बॉडी में घूमेगा, सर्कुलेट करेगा, दैट ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेमोलिक. एंड व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस ब्लड? व्हाट आर द थिंग्स विच मेक्स दिस ब्लड?
This blood is consist of clear colorless plasma. Okay, so their blood is white. If you kill a cockroach, you will not see red blood coming out of it. Okay, so they have a clear colorless plasma and two types of cells. Mainly phagocytes, जिसका काम है providing immunological protection. Phagocytes will remove the bacteria or any other microbes which will enter inside the body. It will provide that immunity. Okay, plus this phagocyte will also help in the removal of metabolic waste. Met waste माने metabolic waste from the tissues. कैसे टिश्यू से रिमूवल करने में फेगोसाइट्स मदद करेगा ये मैं बाद में तुम लोग को समझाऊंगा. कनेक्ट हो जाएगा ये वाला लाइन, ठीक है, जब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे. अभी सर्कुलेटरी कर रहे हैं, उसके बाद रेस्पिरेटरी, उसके बाद एक्सक्रीटरी. ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया है. एक और सेल प्रेजेंट है जिसका नाम है हेमोसाइट्स. तो हेमोसाइट्स क्या करता है? कैरीज एंड डिलीवर्स फूड. हेमोसाइट्स का काम है फूड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना. कनेक्ट करो. एलिमेंट्री कैनल जब हम लोग पढ़ रहे थे, इसका पहला वाला वीडियो, उसमें मैंने क्या बोला था? जो मिड गट वाला रीजन है, मिड गट वाला रीजन के अंदर ब्रश बॉर्डर कोलुमनर सेल प्रेजेंट है. वो एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ मिड गट एंड उसको रिलीज कर देगा ब्लड में. ब्लड का वो कौन सा सेल है जो इस फूड को एक्सेप्ट करेगा, करके डिफरेंट जगह पे ले जाएगा, ले जाके सेल्स को खाने को देगा? वो कौन सा सेल है विच इज गोइंग टू डू द work of a delivery boy being in the body? That cell is hemocytes. It will collect the food nearby the midgut and it is going to deliver that particular food to the cell which needs it. Okay, so I hope you understood why the blood is colorless, because इसमें two types of cells are there and none of them are RBC. We have also not mentioned any kind of respiratory aid given by this blood. अगर ये blood रेस्पिरेटरी एड प्रोवाइड करता, अगर ये ब्लड ट्रांसफर ऑफ गैसेस करता, तो इस ब्लड में क्या होना पड़ता? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होना पड़ता. देयर हैज टू बी अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन दिस ब्लड, बट देयर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन दिस ब्लड. हेंस वी हैव नॉट मेंशन्ड अबाउट इट. हेंस एज देयर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कंसीडर द ब्लड टू बी कलरलेस, बिकॉज these two cells, they do not impart a color, they do not bring a color in the fluid. Hence if you kill a cockroach, you are not going to see red blood, its blood will be colorless, because it does not has hemoglobin present in the blood doing the respiratory purpose. Their respiratory system is highly developed. Gases gets directly delivered to the cell. That is a tracheal system. I think I have talked about that system in arthropoda whatsoever. So this system is so developed that it delivers the gases directly to the cell. Hence the blood does not have to take the responsibility of delivering gases to different cells in the body. Blood will reduce its function, limit its function in doing two things, this and this, because it has these two major types of cells present in it. So I hope जो भी बोला वो समझ में आया है. अब हम लोग थोड़ा सा हार्ट इसका कैसा है एंड वो हार्ट कैसे काम करता है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे. ठीक है, यहाँ से नोट्स तुम लोग बना सकते हो. तो अब हम लोग समझेंगे हार्ट कैसा है एंड ये हार्ट का फिजियोलॉजी, मैकेनिज्म, फंक्शन, ये कैसे काम करता है, इस चीज को समझेंगे. ठीक है, सो सी हियर आई हैव गिवन दैट हार्ट इज अ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब 13 चैम्बर्ड lying mid dorsally in the thorax and abdomen region. तो काफी सारा इंफॉर्मेशन दो लाइन में है. So this is how their heart looks like. This is 1 chamber, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके till 13 chamber. 13 chamber has a close end, okay, but the first chamber it has an open end. Okay, it has an open end. Okay, but the 13 will have a closed end. Okay, so this heart is present here. ये जो exact structure जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, 13 चैम्बर बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने 1, 2, 3, 4 बनाया. देन दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. देन मैंने 5 से 12 तक नहीं बनाया, कंसीडरिंग कि एक ही लाइन में है. 13 बनाया. ठीक है, थोड़ा बड़ा करके किया, नहीं तो छोटा छोटा हो जाता. ओके, नाउ कंसीडर दिस हार्ट, ठीक है, इज प्रेजेंट हियर इन दिस पोर्शन, बिकॉज दिस कैविटी इज कॉल्ड एज व्हाट? पेरिकार्डियल. एंड पेरिकार्डियल में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट लिख के रखा है, तो ये यहाँ प्रेजेंट है. हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द पेरिकार्डियल साइनस विच इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल रीजन. एंड ऊपर से देखेंगे तो मिड डॉर्सली रन कर रहा है. ठीक है, हेड रीजन से हार्ट प्रेजेंट नहीं होता है. हार्ट इज प्रेजेंट फ्रॉम द थोरेक्स पार्ट, माने हेड रीजन में नहीं होगा, फ्रॉम द थोरेक्स. यहाँ ये होगा ऐसे ऐसे
1 चैम्बर, है ना, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर टिल 13 चैम्बर, यहाँ पे ऐसे सीरियली प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग का पहला चैम्बर का जो फ्रंट में थोड़ा सा पार्ट है, दिस फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड एज एंटेरियर ऑर्टा। And always remember, whenever the blood comes out from the anterior aorta, generally when the heart contracts, when the heart pushes the blood, okay, जब heart contract करेगा तो अपने अंदर का blood को push करेगा, तो जब heart contracts and it pushes the blood comes out, blood of all the chamber will togetherly come out through anterior aorta, and the blood will go directly into perineural sinus. Remember this point. ओके, व्हेनेवर हार्ट ऐसे करके प्रेजेंट है 13, जब ये हार्ट पंप करेगा तो यहाँ से जो ब्लड निकलेगा एंटेरियर ऑर्टा के थ्रू, दैट ब्लड विल डायरेक्टली गो इनटू दिस कैविटी व्हिच इज कॉल्ड एज पेरीन्यूरल कैविटी, इज नॉट इट, दिस इज कॉल्ड एज पेरीन्यूरल कैविटी, और इसमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, हार्ट ऑफ कॉकरोच इज you can say the heart of cockroach is not a pulsatile heart. That means the heart does not has the ability to do its own pumping, own contraction, own relaxation. Okay, heart का contraction and relaxation is basically done by these muscles which are present in the heart. Okay, these muscles, triangular shaped muscles. What are these muscles called as? These muscles are called as Ehlers muscles. And generally student confuses this thing. They think that there are 13 chambered heart in cockroach. So हर एक चैम्बर के लिए एक पेयर ऑफ एलरी मसल है, नहीं, एलरी मसल 2 चैम्बर के बीच में आता है, हेंस एलरी मसल जो है वो 12 पेयर्स होता है, 13 हार्ट है 12 पेयर्स होगा, ठीक है। दिस कैन बी द फर्स्ट पेयर एंड दिस कैन बी कंसीडर्ड एज द 12th पेयर। ओके, सो देयर आर 12 पेयर, क्योंकि ऐसे पेयर उस तरफ भी है, इस तरफ भी है, लाइक दैट। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज एलरी मसल। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एलरी मसल? ये एलरी मसल विल make the contraction and it will make the chambers of the heart to contract and to relax. मतलब हार्ट का जो अपना वाल है, ये जो हार्ट का अपना वाल है, ये वाल जो ब्लैक में ड्रॉ किया हुआ है, वो हार्ट का वाल के पास खुद का एबिलिटी नहीं है कंट्रैक्ट करने का, तो हार्ट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए भी डिपेंडेंट है बाहर के एक मसल के ऊपर। हेंस इस तरीके के हार्ट को हम लोग नॉन पल्सेटाइल हार्ट बुलाते हैं, बिकॉज हार्ट lacks its own ability to contract and relax, ठीक है। तो आई होप जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। ओके, लेट्स कंसीडर द ब्लड फ्लो मैकेनिज्म। लेट्स कंसीडर नहीं, ऐसे ही होता है, जैसे कि मैंने बोला हार्ट जब, अच्छा एक और चीज हार्ट का देख लो, ये जो हार्ट का चैम्बर्स दिखाई दे रहा है कि नहीं, इन चैम्बर्स के अंदर अपना अपना इंटरलिंक है। दैट मींस द ब्लड ऑफ 4 कैन कम इनटू 3 का कैन कम इनटू 2, तो इनका अपना अपना एक अंदर से एक लिंक है। लेकिन इनमें देखो मैंने गोल गोल कुछ ड्रॉ किया है, स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स आई हैव ड्रॉन। दिस स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? ऑस्टिया, ठीक है। हर चैम्बर में देखो प्रेजेंट है ऑस्टिया। दीज आर सम स्मॉल पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ईच चैम्बर ऑफ द हार्ट। ये जो ऑस्टिया है, दिस ऑस्टिया इज गार्डेड बाय अ वेल्व। देयर इज अ वेल्व व्हिच विल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस ऑस्टिया। ये वेल्व बंद हो जाएगा तो ऑस्टिया को बंद कर देगा, ये वेल्व ओपन हो जाएगा तो ऑस्टिया ओपन होगा। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑस्टिया इज बेसिकली रेगुलेटेड बाय अ वेल्व व्हिच इज कॉल्ड एज ऑरिकुलर वेल्व, जो इस ऑस्टिया को सराउंड करके प्रेजेंट है, ऑस्टिया का ओपनिंग एंड क्लोजिंग को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। सिमिलरली एक और वेल्व उसी तरीके का, जैसे कि ऑस्टिया का वेल्व का नाम क्या है? ऑरिकुलर वेल्व। उसी तरीके का एक और वेल्व है जिसका नाम क्या है? वेंट्रिकुलर वेल्व। और वेंट्रिकुलर वेल्व कहाँ प्रेजेंट है? एंटेरियर ऑर्टा में प्रेजेंट है, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीज है, इनको याद रखना, फिर मैकेनिज्म में ये सब घुस जाएगा। ओके, तो एज मैंने बोला कि जब भी एंटेरियर ऑर्टा के थ्रू जब भी हार्ट पंप करे, जब भी एलरी मसल हार्ट को पंप करवाएगा, हार्ट जब पंप करेगा, इन सब चैम्बर का जो ब्लड है वो ब्लड निकलेगा थ्रू एंटेरियर ऑर्टा एंड जाएगा पेरीन्यूरल साइनस में। पेरीन्यूरल साइनस में ये ब्लड जाके जो भी ब्लड का काम है, काम क्या है हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, ब्लड इम्यूनिटी देता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को साफ करेगा, क्लियर करेगा, एंड it delivers food. So whatever is the work of the blood, ठीक है ना, whatever is the work of the blood after coming out from the anterior aorta, the blood will do its respective work in the perineural sinus,
ठीक है, जो भी उसका काम है पेरिन्यूरल साइनस में पूरा फैल जाएगा, पेरिन्यूरल साइनस के हर सेल्स टिश्यूज के कांटेक्ट में आएगा। एज द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, ब्लड इज बाउंड टू कम इन कांटेक्ट विद ईच एंड एवरी सेल। सो ब्लड जब एंटेरियर ऑर्टा से निकल के आएगा, द ब्लड विल कम इनटू द पेरिन्यूरल साइनस। In the perineal sinus it will flow in the open cavity. Perineal sinus के हर सेल्स के कांटेक्ट में आएगा, सेल को खाना देगा, सेल से मेटाबॉलिक वेस्ट उठाएगा, जो भी ब्लड का काम है ब्लड वो काम करेगा। वो काम करके ब्लड पेरिन्यूरल से वो ब्लड मूव करके पहुंच जाएगा किधर, इधर। ये क्या है, दिस इज पेरीविसरल साइनस। पेरीविसरल साइनस में जितना भी सेल्स है सब सेल के कांटेक्ट में आएगा, सेल को खाना देगा, सेल से मेटाबॉलिक वेस्ट लेगा, काम खत्म करेगा, पेरीविसरल से वापस पहुंच जाएगा किधर, पेरिकार्डियल में। सो ब्लड का फ्लो समझ में आया ना, ब्लड हार्ट से निकलेगा, निकल के पेरिन्यूरल में आएगा, and in the perineal cavity it will come in contact with the cells, it will do the necessary exchange with the cell. After doing that it will move from this cavity to this cavity, that is perivisceral sinus. From perivisceral sinus it will again do the same thing, it will give food, take metabolic waste. Once done the blood will move from perivisceral sinus to pericardial sinus. वापस blood pericardial में आ गया। अब ऐसे कंसीडर करो, ये जो हार्ट है, इस हार्ट के अंदर में ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है, इसको साइकिल के जैसा है, तो थोड़ा मेरे साथ इसमें घुस जाना पड़ेगा अभी, कि इफ इनके अंदर ब्लड इज फील्ड, कंसीडर करते हैं कि ब्लड इज फील्ड, कंसीडर करते हैं हार्ट के अंदर ब्लड अभी प्रेजेंट है, तो हार्ट के अंदर में जब ब्लड प्रेजेंट होगा, व्हेन द ब्लड इज फील्ड, ओके, एट दैट टाइम ये जो ऑरिकुलर वेल्व है, ये ऑरिकुलर वेल्व क्लोजेस। जब इन चैम्बर्स के अंदर ब्लड घुस जाएगा, कैसे घुसा वो मैं लास्ट में समझाऊंगा। इन चैम्बर्स के अंदर अगर ब्लड घुस जाता है, ये सब चैम्बर्स अगर कंप्लीटली फिल्ड विद ब्लड हो जाता है, आफ्टर दैट द वेल्व व्हिच इज गार्डिंग दिस ऑस्टिया, दैट वेल्व विल क्लोज एंड द ऑस्टिया विल क्लोज एज वेल। सो व्हेन द चैम्बर्स आर फिल्ड विद ब्लड, ऑस्टिया इज शट, ऑस्टिया इज क्लोज्ड। नाउ the chambers of the heart are going to contract with the help of Ellery muscle. Ellery muscle will make them contract. So when this chamber will contract, the blood will try to come out from the ostia, but ostia is closed. So the blood has no way to come out through ostia. So blood कहाँ जाएगा? ostia से तो निकल नहीं सकता है। जब Ellery muscle हार्ट के चैम्बर्स को कंट्रैक्ट करा रहा है, यहाँ पे अंदर में पूरा ब्लड भरती है, अभी 4 को Ellery muscles ने कंट्रैक्ट करवाया, तो 4 का ब्लड बाहर आना चाहेगा थ्रू ostia, बट ostia तो बंद है, क्योंकि जैसे ही हार्ट के अंदर कंप्लीटली ब्लड विल गेट फिल्ड, द ऑस्टिया क्लोजेस, सो ऑस्टिया इज क्लोज, सो द ब्लड हैज नोवेयर एल्स टू गो, बट द ब्लड विल गो इनटू द आगे का चेंबर। फ्रॉम द ब्लड ऑफ द 4th चेंबर विल मूव टू 3rd, ब्लड ऑफ द 3rd चेंबर विल मूव टू 2. Similarly it will start from the 13. 13 is a closed end, so when 13 will contract, so the blood of the 13 cannot come out through the ostia, okay, because ostia is closed. Then the blood of the 13 will move to 12, blood of 12 will move to 11, 11 का blood will move to 10. In this way 2 का blood will move to 1, 1 का blood will come out through anterior aorta. So when Ellery muscle contract, we know our heart contracts, cockroach का heart contracts, and जब cockroach का heart contract करता है, ठीक है, when heart contracts, जब heart contract करेगा, कंप्रेस करेगा, ब्लड को पुश करेगा, तब ऑस्टिया, या ऑस्टिया के जगह अच्छा होगा अगर हम लोग ये लिखे ऑरिकुलर वेल्व क्लोजेस, ऑरिकुलर वेल्व बंद होता है, बट वेंट्रिकुलर वेल्व ओपन्स, ठीक है, पीछे से ब्लड पुश करते 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 1 तक आया, जब 1 का ब्लड निकलने का कोशिश करेगा तो ये वेंट्रिकुलर वेल्व को खुलना पड़ेगा, सारा का सारा चैम्बर्स का ब्लड वेंट्रिकुलर वेल्व विल ओपन एंड the blood will come out and it will go where? To the perineal sinus. Perineal sinus में जाके blood क्या करेगा? अपना काम करेगा, करके perineal sinus से blood will move into perivisceral sinus. Perivisceral sinus से through these pores which are called as fenestra, the blood will move into pericardial sinus. जब तक blood pericardial sinus तक पहुंचा, तब तक ये जो हार्ट है ना, ये हार्ट contracted way में ही है, ये हार्ट पिचका हुआ है, पिचका माने इट इज कंट्रैक्टेड, ये जो कंप्रेस किया था कि नहीं, वो कंप्रेशन में जो ब्लड निकला, वो ब्लड यहाँ से निकल के एंटीरियर ऑर्टा से निकल के पेरीन्यूरल साइनस से होते हुए, पेरीविसरल साइनस से होते हुए पेरिकार्डियल में वापस पहुंच गया। जब ब्लड यहाँ से मूव करते हुए पेरिकार्डियल में पहुंच जाता है, व्हेन द ब्लड रीचेस द पेरिकार्डियल साइनस,
that is the time when this heart starts to relax. Ellery muscle will start to relax, heart will also start to relax. So when the heart starts to relax, that is the time when ostia का जो valve है that will open and anterior aorta का जो valve है ventricular valve that will close. समझ में आया कि नहीं ये वाला पोर्शन? ठीक है, ध्यान से सुनना पड़ेगा. When heart relaxes, that means when the heart opens, comes back to its original state. Contract में छोटा हो गया था, relax में फिर से अपना original state में आएगा. तो when the heart relaxes, तब क्या हो जाएगा? तब AV valve माने auricular valve क्या हो जाएगा? Opens and ventricular valve closes. ठीक है, तब क्या होगा? ये जो ये valve है, ये valve बंद हो जाएगा और इन सब का valve खुल जाएगा. So now when the heart will open up, what will happen? The heart will suck the blood in. जो blood पेरिकार्डियल साइनस में पहुंचा है, पहुंच के तो वो सब सेल का कांटेक्ट में आ गया है ना. हार्ट ऐसा है तो ये जो स्पेसेस है, ठीक है, यहाँ से जब समझ में आया ना, यहाँ से ब्लड एंटीरियर ऑर्टा से निकला, कंट्रैक्टेड हार्ट, एंटीरियर ऑर्टा से ब्लड निकला, इधर आया, इधर अपना काम करके पेरीविसरल में गया, पेरीविसरल में अपना काम करके पेरिकार्डियल में गया. व्हेन द ब्लड रीच द पेरिकार्डियल, एट दैट टाइम द हार्ट वाज कंट्रैक्टेड ओनली. ब्लड हैज डिलीवर्ड फूड एंड टेकन मेटाबॉलिक वेस्ट. ये होने के बाद ये जो हार्ट कंट्रैक्टेड वे में था, ये ओपन अप होने लगा. तो जैसे ये ओपन अप होने लगा, ऑस्टिया का वेल्व खुल गया. तो ऑस्टिया का वेल्व खुलने के वजह से व्हेन द हार्ट विल ओपन अप, हार्ट विल ड्रॉ इन द ब्लड. हार्ट अपने अंदर सक करके ब्लड घुसा लेगा. और किसके थ्रू घुसाएगा? ऑस्टिया के थ्रू. एंड निकाल नहीं पाएगा. क्यों नहीं निकाल पाएगा? क्योंकि ये वाला वेल्व तो बंद है. एक बार हार्ट पूरा खुल गया, तब तक तो हार्ट के अंदर में ब्लड भी तो पूरा आ गया. जैसे ही ब्लड अंदर कंप्लीटली फिल हो गया, ऑस्टिया क्या हो जाएगा? जो पोर्स है, इट विल अगेन क्लोज एंड दिस वन विल ओपन, हार्ट विल कंट्रैक्ट. फिर से ब्लड देखो एक फ्लो में बाहर आएगा. ब्लड विल गो डायरेक्टली इनटू दिस, यहाँ पे जाके अपना काम करेगा. यहाँ से द ब्लड विल कम इनटू पेरीविसरल साइनस, ठीक है, वहां पे अपना काम करेगा. पेरीविसरल से जाएगा पेरिकार्डियल, वहां पे अपना काम करेगा. काम खत्म पेरिकार्डियल में, तब हार्ट फिर से रिलैक्स होने लगेगा. रिलैक्स में ऑस्टिया का वेल्व खुल जाएगा, ये बंद हो जाएगा. ऑस्टिया ब्लड को सक करके अपने अंदर घुसा लेगा. कंप्लीटली फिलिंग ऑफ द हार्ट जब हो जाएगा, तब ऑस्टिया फिर से बंद हो जाएगा, ये फिर से खुल जाएगा. फिर हार्ट पंप करेगा, फिर ब्लड निकल के आएगा. एंड इसी पैटर्न में सर्कुलेशन विल कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग. Okay, so I hope you understood whatever I tried to explain by making these diagrams, okay, and to try to explain about the movement of the blood from one place to another, how this is happening and how the heart is behaving in a tandem, behaving in a rhythmic manner. Everything I have tried to explain. ये explanation सुन के I want you to make notes from the explanation what you understood. I want you to make notes from there. If you are not able to make note from it, you can ask me. I will send you a picture of a note of any of my previous student. From there you can write it down or you can make a copy of that. Okay, so I hope you understood how this heart behaves. Now I will give you some extra point of this circulatory system and then we are done with the circulatory system. Okay, make proper notes. तो यहाँ पे देखो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे दिया है. मैकेनिज्म एंड बॉडी का, हार्ट का पूरा फिजियोलॉजी तो ऑलरेडी डायग्राम में ही समझाया है. सो हार्ट पल्सेट्स अबाउट 50 टाइम्स पर मिनट. दैट मीन्स हार्ट बीट इज 50 टाइम्स पर मिनट. ईच बीट रिप्रेजेंट्स बोथ द हार्ट मॉड्यूलेशन, दैट इज सिस्टोल, कंट्रैक्शन, जब ब्लड 13 चैम्बर से एंटेरियरली फ्लो करता है एंड एंटेरियर ऑर्टा से निकल के पेरीन्यूरल साइनस में ब्लड जाता है. दैट contraction of the heart and pushing the blood of the heart anteriorly because there is no other opening. 13 band, ostia band, so the blood has the only way to go out is through anterior aorta. So blood flows anteriorly and goes into the perineural sinus. Okay, so that thing, that contraction of heart which is caused by Ellery muscle is the systole. Okay, and then when the blood returns back to the pericardial sinus, then when the heart starts to relax, when the heart starts to open and the ostia opens up which sucks the blood in, you can say sucks the blood in or draws the blood in, that mechanism when the heart is opening up is the diastole or relaxation. That is a complete heartbeat, from that pushing of the blood doing the contraction to or till the opening back and getting its original position. That is called one heartbeat. Okay, so time interval
between two systole. That means starting of one heartbeat, that is systole, completion of one heartbeat, diastole, then again another systole. When the diastole जब हो रहा है, blood क्या हो रहा है, वापस ostia के through अंदर refill हो रहा है. When the refilling is complete, ostia closes. Ventricular valve of anterior aorta will open and the blood will again get that push. So from the first push till the next push, this is called as, time interval is called as diastasis. And another extra point I have given, that in the body of any arthropod, we know, suppose antenna comes out from here, from the anterior part of the head, antenna comes out. Now when the blood will be present in the pericardial sinus, pericardial sinus. So when the blood will reach into the pericardial sinus, before entering inside the heart, there will be a specialized heart present over here. At this position there will be a special heart present which is called as pulsatile ampulla, and this heart will collect some blood from the pericardial sinus and it will push the blood into the antenna. क्यों ऐसा क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज जो बॉडी का अपेंडेजेस है, वो बॉडी का अपेंडेजेस मेन बॉडी से बाहर के तरफ निकला हुआ है. तो जो 13 चेम्बर्ड हार्ट है, वो जब ब्लड को पुश करता है, उस पुश से द ब्लड कैन नॉट रीच इनटू द एंटीरियर और इंटीरियर, एकदम अंदर का पार्ट्स ऑफ द अपेंडेज, विंग्स, लेग्स, एंटीना, these are the appendages, mouth parts, these are the appendages which comes out from the main body. So उन appendages के एकदम अंदर तक, कोना तक ब्लड को पहुंचाने का जो एबिलिटी है, वो एबिलिटी 13 चेम्बर्ड हार्ट के पास नहीं है. 13 चेम्बर्ड हार्ट का जो प्रेशर होगा, ब्लड को पुश करने का जो प्रेशर होगा, उस प्रेशर से सिर्फ ब्लड पेरीन्यूरल, पेरीविसरल, पेरिकार्डियल, बस यही मूवमेंट कर सकता है. बट द ब्लड कैन नॉट एंटर इनसाइड अ अपेंडेज एंड कम आउट फ्रॉम दैट अपेंडेज. तो उसके लिए बॉडी ने एक स्पेशल हार्ट बना के रखा है, जो हार्ट बॉडी कैविटी के कनेक्शन में है. ये हो गया बॉडी कैविटी, पेरिकार्डियल साइनस. सो व्हेन द ब्लड विल कम इनटू द पेरिकार्डियल साइनस, घूम के जब आएगा, बिफोर एंटरिंग इनसाइड द हार्ट, बिफोर द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, व्हेन द ब्लड विल फील इनटू द पेरिकार्डियल साइनस, दैट इज द टाइम व्हेन this particular heart, which is called as pulsatile ampulla, will gather some blood and will push that blood into the antenna. The blood will come back from the antenna, this heart will release that blood here, and that is the time when the heart will start to relax and it will suck the blood in. Ostia locked, closed, anterior aorta open, ventricular valve open, push blood directly perineurial. समझ में आया ना? अब सपोज पेरीन्यूरल में तुम बोलो सर ये तो अपने ऊपर का बोला, नीचे का क्या? तो नीचे का क्या प्रेजेंट है? लेग्स. ऐसे तो लेग्स के लिए भी क्या होगा? नीचे यहाँ पे क्या होगा? एक स्पेशल हार्ट प्रेजेंट होगा. क्या बुलाएंगे? पल्सेटाइल एम्पुला. वो स्पेशल हार्ट क्या करेगा? जब ब्लड पेरीन्यूरल साइनस में आता है एंटीरियर ऑर्टा से निकल के, तब ये हार्ट पेरीन्यूरल साइनस से ब्लड लेगा, लेग में पुश करेगा, लेग से वापस आएगा, ब्लड फिर एक साथ मिलके पेरीविसरल में चला जाएगा. इट विल हैपन दैट वे. Okay, so I hope you understood the pulsatile ampulla is a special heart which is present in the body of insects to pump the blood into the interior parts of the appendages. Okay, so I hope this circulatory system is clear, as I am not sure as of now that respiratory system, the tracheal system, if I have discussed that in arthropod, phylum Arthropoda or not. Hence I am not extending the video today. I will keep it till here. I will check that if the respiratory system has already been discussed, then I am not going to make another video of tracheal system, as I have already discussed in Arthropoda. If not, then I will make. Okay, so see you in the next class. Till then, bye bye.